Hello dear students. So today we are going to learn a separate topic called as quadrant operation of a drive. Okay. That is also called as quadrilateral diagram of a speed torque characteristics. The objectives, outcomes, concept and reference will be the outline. So what is the objective? The objective is to understand different quadrants in which a drive operates. ये क्यों चाहिए? इसका आंसर हम थोड़ी देर के बाद देते हैं, लेकिन टू अंडरस्टैंड डिफरेंट क्वाड्रेंट्स इन विच ड्राइव ऑपरेट्स, हमारी गाड़ी कैसे चलती है वो तो हमें समझ में आना चाहिए. फॉर दैट पर्पज दिस इज द ऑब्जेक्टिव. आउटकम. So you will be able to link the directions of motor and load torque in a 4 quadrant drive system. अगर हमें किसी ड्राइव को या किसी गाड़ी को बनाना है तो कौन सा टॉर्क किस तरह काम करना चाहिए, हाउ आई विल बी प्रोवाइडिंग और हाई विल बी डूइंग द एनालिसिस कि ये गाड़ी चल क्यों नहीं रही है. तो फॉर दैट पर्पज आई नीड टू नो व्हाट इज क्वाड्रेटर डायग्राम ऑफ स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके. सो नाउ अ मोटर ऑपरेट्स इन 2 मोड्स. आई होप यू ऑल माइट बी एग्रीइंग कि हाँ, मोटर मोटरिंग में घूमती है, गाड़ी हमारी मोटरिंग में चलती है और ब्रेक भी करती है. सो व्हाट इज मोटरिंग मोड देन? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल इंजन टू मैकेनिकल एनर्जी. हमारी गाड़ी को घुमाना है, हमारी गाड़ी चलनी चाहिए रोड के ऊपर, तो हमें मोटरिंग करना है, यानी हमें सेल देके उसको गाड़ी को घुमाना है. दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर. हम इस केस में इलेक्ट्रिकल बोल रहे हैं. अगर इलेक्ट्रिकल कार ले रहे हैं तो डीजल पावर ऑल्सो वर्क्स ऑन द सेम. It going to convert into mechanical energy which supports its motion. Braking, so it works as a generator converting mechanical energy into electrical energy and opposes the motion. तो ये सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में होता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है और इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में होता है. गाड़ी इलेक्ट्रिक कार इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रिक ड्राइव, नथिंग एल्स. सेपरेट ऐसा कुछ नहीं है, वो इलेक्ट्रिक ड्राइव ही है. सो हियर द कंप्लीट कार or complete electric drive works in 4 quadrants: forward motoring, forward braking, reverse motoring, reverse braking. Okay. So motoring operations, power developed is positive, and for braking operations, power developed is negative. It's but obvious. Now let's take the example of a hoist. अभी hoist का काम क्या है? So hoist is going to be used for the purpose of carrying object top और मेकिंग ए मूविंग इट डाउन, या फिर एम्प्टी ऊपर जाना है, एम्प्टी नीचे आना है. यस, इन दिस 4 कैटेगरीज माय कंप्लीट speed torque characteristics of a drive are being defined. So in quadrant 1, developed power is positive, hence machine works as a motor supplying mechanical energy. ये लोडेड केज को ऊपर लेके जाना है, तो यानी वजन उठाना है, तो हम उसको मोटरिंग एक्शन बोलेंगे. ऑपरेशन इन क्वाड्रेंट 1 इज देयर फॉर फॉरवर्ड मोटरिंग. इन क्वाड्रेंट 2 पावर डेवलप्ड इज नेगेटिव. इसमें नेगेटिव है. क्यों नेगेटिव है? क्योंकि हमें ब्रेक अप्लाई करने हैं. क्या होगा अगर एम्प्टी केज अगर बहुत जोर से ऊपर जाएगा तो डेंजरस स्पीड से जा सकता है. सो फॉर दैट पर्पज आई नीड टू अप्लाई द ब्रेक. देयरफॉर इन quadrant 2 I say it is forward braking. Similarly, in quadrant 3 and 4 we can say that it is reverse motoring and this is reverse braking. Okay. Now let's see in a bit detail. So in this, what is the scenario? Here there is a counterweight, here this is a hoist, and here there is a cage. Other end of this is connected to the counterweight and the one is with the loaded cage. So weight of the counterweight is chosen to be higher than the weight of the empty cage. Yes, ये जो empty cage है उसका वजन इससे कम होना चाहिए. That is, counterweight should be greater than the empty cage weight and the counterweight should be lesser than that of the loaded cage weight. ये इसका criteria है. So forward direction of motor speed will be 1 which gives upward motion of the cage. And so क्या होगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा. So this is load torque and this is the motor torque. Okay, and this is my speed. Then in this case क्या होगा कि हमें ऊपर लेके जाना है. सो हमारा जो एक्टिव टॉर्क है वो भी ऊपर खींचने वाला चाहिए. यस, इट शुड असिस्ट द स्पीड. एंड इन दिस केस क्या होगा कि हमारा जो स्पीड है उसके अपोज में ही हमारा मोटर ने टॉर्क देना चाहिए, ताकि वो उसको नीचे दबा के रखेगी, वो उसको खींचेगी नहीं. यस, आई गेटिंग.
आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई वॉन्ट टू लिफ्ट अ हॉइस्ट, एक लिफ्ट को उठाना है ऊपर, लेकिन वो एम्प्टी है, तो एम्प्टी होगी तो क्या होगा, अगर मेरी मोटर के ऊपर लोड ही नहीं है तो वो जोर से खींची आएगी ना, क्योंकि काउंटर वेट ज्यादा है एम्प्टी केज से, तो इट विल मूव एट अ वेरी हाई स्पीड. सो टू अवॉइड दैट द मोटर टॉर्क शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द स्पीड, बट the load torque will be in the same direction that of the speed. Now the quadrant 1, as I told you, that operation of this hoist requires movement of cage upwards, which correspond to the positive motor speed, which is counterclockwise direction. So the motion will be obtained if the motor produces positive torque. अगर positive torque है in counterclockwise direction है तो ही ये हो पाएगा, तभी ये loaded cage ऊपर जा पाएगी. So it is also called as forward motoring operation. Now in quadrant 4, the loaded cage is lowered. Okay, the loaded cage is lowered, but what may happen, like अभी हमने बोला कि loaded cage का weight जो है वो ज़्यादा होगा काउंटर वेट से, तो फिर से ये जोर से नीचे आ सकता है, यहाँ पे डैमेज हो सकता है. So इस केस में भी हमें क्या करना है, the weight of the loaded cage should be is higher than the counter weight and is also able to overcome due to gravity itself. तो क्या करेगी कि ग्रेविटी भी इसको खींचेगी नीचे. यस, तो ग्रेविटी अगर इसको नीचे खींचेगी, ये भी नीचे खींच रहा है, तो ये बहुत जोर से आएगा, इसीलिए मुझे ये जो दो टॉर्क है ये अपोजिट में चाहिए और स्पीड इस डायरेक्शन में चाहिए. सो इट इज गोइंग टू गेट लोअर्ड. ओके, एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट व्हाट हैपेंस, दैट इज अगेन आई एम गोइंग टू लोअर द एम्प्टी केज. अभी एम्प्टी केज है, एम्प्टी कोच को तो नीचे लेके जाना ये मेरा काम है, लेकिन ये काउंटर वेट उसको करने नहीं देगा. सो व्हाट इज दैट, द टॉर्क प्रोवाइडेड बाय द मोटर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड, तो ये उसको नीचे लेके जाएगा. ओके, एंड फॉर दिस केस वी कॉल इट एज द रिवर्स मोटरिंग ऑपरेशन. सो दिस वन इज द रिवर्स मोटरिंग ऑपरेशन, इज क्वाड्रेंट 3. And it is in clockwise direction. This is in anti-clockwise direction. This is in clockwise direction. This is also in clockwise direction. And these are the load and the motor torque. Okay. So this was all about the working of a hoist. और empty cage है तो ऊपर कैसे जाएगा, loaded cage है तो नीचे कैसे जाएगा, और how we call that. So this is a theoretical part which I have given it in theory. So let's start. I will just read it for you. So in the first quadrant, it is the area of operation in which the loaded cage is moving upwards. So देखा हमने कि cage ऊपर जा रहा था, but it was loaded, and the direction of rotation of the speed of the motor will be anti-clockwise, that is its positive speed, and the load torque acts in the opposite direction to the direction of motor rotation. तो मोटर अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी तो वो जो लो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज घूम रहा था, वो उसको नीचे ही ले रहा था, और मोटर का काम अगेंस्ट था क्योंकि उसको वजन उठा के ऊपर जाना था. सो दिस इज गोइंग टू बी इन अपोजिट डायरेक्शन. टू रेज द हॉइस्ट टू अपवर्ड डायरेक्शन, द मोटर टॉर्क मस्ट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मोटर स्पीड. सो एज बोथ आर पॉजिटिव, द पावर इज पॉजिटिव एंड इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड मोटरिंग, as we have seen. Now in the second quadrant operation, it was that unloaded cage है, यानी empty cage है, और अभी उसको हमें ऊपर लेके जाना है. तो क्या होगा, डेंजरस स्पीड से वो ऊपर जाएगी क्योंकि काउंटर वेट हेवी है, तो उसको हमें रोकना है. दिस इज गोइंग टू हैपन नेचुरली, बट हमें उसको रजिस्ट करना है कि उसने कुछ एक्सीडेंट नहीं करना है. दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्राइव, स्मूथली एक्सीडेंट एंड स्मूथली डिस्ट्रॉयड. सो टू प्रिवेंट दिस, द मोटर मस्ट प्रोड्यूस अ टॉर्क इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोटर स्पीड. ऊपर जा रहा था तो उसके अगेंस्ट मोटर ने काम करना है, यानी उसने ब्रेक अप्लाई करने हैं. अगर उसको स्पीड अप करना है, स्पीड बढ़ा है, तो उसको ब्रेक अप्लाई करने हैं ताकि हमें एक्सीडेंट को अवॉइड करना है. एंड द मोटर टॉर्क विल बी नेगेटिव एंड द मोटर विल बी स्पीड विल बी पॉजिटिव. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड ब्रेकिंग. In the third operation, it was an empty cage, it was coming down. So again there was a dangerous situation which may have occurred. तो इसमें मोटर टॉर्क शुड बी द सेम डायरेक्शन दैट ऑफ द मोटर रोटेशन, तो ही वो नीचे जा सकता है, या फिर क्या होगा, काउंटर वेट उसको नीचे पीछे से खींचता रहेगा. सो ड्यू टू डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द केज, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स्ड. सो स्पीड एंड टॉर्क ऑल्सो नेगेटिव, and machine acting as motor in reverse direction receives power from supply and hence power is positive. Machine acting as a motor in reverse direction receives power from supply. Now this is what is
कॉल्ड एज रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो क्या होता है कि जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें पावर रिसीव होती है डायरेक्शन, तो उस केस में हम इसको रिवर्स मोटरिंग कहते हैं। यानी जो हमने हमारे पास अवेलेबल एनर्जी थी वो हम फिर से उसको सोर्स को भेज दिए और फिर से हम यूज करें, दैट इज अ रिवर्स मोटरिंग। And the last one is four quadrant operation, that is the loaded cage is moving down and it is loaded, so the downward journey of the loaded cage is without motor. There is a chance to go down with a dangerous speed, so to limit this we must be applying some brake, and to due to this the motor speed is negative, torque is positive to decrease the speed of the motor and thus the power is negative and supplied to the supply. So वो जो बोला वो रिवर्स मोटरिंग था एंड दिस इज रिवर्स ब्रेकिंग। रिवर्स ब्रेकिंग है यानी द पावर इज नेगेटिव एंड सप्लाई टू द सप्लाई, यानी जो भी उसकी पावर थी वो हम सप्लाई को भेज रहे हैं और इस केस में हम सप्लाई से ले रहे थे। सो इन फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन वी एक्चुअली सप्लाई द एक्सेसिव पावर टू द सप्लाई एंड वी वोंट गेट इट फ्रॉम द सप्लाई। So this is also called as regenerative action, hence called as reverse braking. And the reference for this is a first course on electric drives by SK Pillai. It's very easily and simply explained by this SK Pillai. Okay, so this was for the day. Thanks.